Assalamu alaikum students. Today we're going to cover the 9th lecture of our International Finance module. Let's review the previous lecture. First of all, we discussed the spot market time zones, and we also discussed that obviously there can be different time zones in the world when you are dealing in international business. So when the market in London or in Asia will open, so the time in America will be different. So when the American market will open, so already the London market and Asian market would have done their trading, and the quotes or the rates of the exchange rates will be determined by these markets. So when you do your international business, so you have to focus on different time zones. कि जब आप business कर रहे हैं, especially on international standard, international grounds, so आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त वर्ल्ड में हर जगह सेम टाइम नहीं है. So if you are working in Pakistan, so you should know कि कनाडा में इस वक्त टाइम डिफरेंस है. सो सेम एज फॉर द स्पॉट मार्केट वी डिस्कस्ड कि अगर आपको इमीडिएट ट्रांजैक्शंस करनी है इन फॉरेन एक्सचेंज, सो यू शुड नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइम जोन्स एंड द मार्केट्स इन लंडन विल ओपन एट अ डिफरेंट टाइम फ्रॉम द मार्केट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स. We also discussed the spot market liquidity criteria, where we said that there can be liquidity in the spot market if there is a lot of demand and supply in the spot market. So the forces of demand and supply, if they are at a greater extent in liquidity, that form the liquidity in spot markets. Obviously, there should be some benefits to the banks who are offering you the foreign exchange transactions or who are offering you the foreign exchange services. How would they make their profits? So usually the banks who are offering you the foreign exchange services, they quote either the bid rates or the ask rates. Bid rates are the buying rates at which the bank is going to buy the foreign currency. On the other hand, ask rates are the one at which the bank is to sell the foreign currency. So maybe you are a person who is in need of the foreign exchange, so you would look for the selling rates from the banks, which are the ask rates. So that means if you want to get some foreign currency from the bank, you would look for the ask rate. However, if you want to sell the currency to the bank, so that means you will look for the bid rate. Do you think that the bid rate and ask rate will be same for the bank? No. Why? Because the bank will buy the foreign currency at low prices and then they will sell the same currency to the other person at a higher price. The difference between the buying and selling rate, which is the bid and ask rate, is the profit for the bank, and the spread can be calculated as we discussed between the difference of the both divided by the selling rate. There are two types of quotations. One is called the direct quotation and the other one is called the indirect quotation. The direct quotation is the one in which the currency is denominated in terms or equivalents to the dollar rate. Like this much pounds will be equal to this dollar. On the other hand, if you are having $1, so how much your currency is equal to $1? So that is called your indirect quotation. We also worked through the formula which was for the direct and indirect quotations, that how you can find the indirect quotation. We know when you are discussing or when you are dealing with international business, so there is a possibility कि आपको exchange rates में fluctuations face करनी पड़े. So when you are facing exchange rate fluctuations, what will happen? कि आपकी exchange rate fluctuations की वजह से आपका business affect हो सकता है. Exchange rate fluctuations क्या है? कि आपकी exchange rates की prices in terms of your currency are changing. So आज डॉलर की प्राइस इन पाकिस्तानी रुपीस कुछ और है और कल डॉलर की प्राइस इन पाकिस्तानी रुपीस कुछ और है.
अगर तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं इन योर एक्सचेंज रेट्स, so that means currency market or foreign exchange is having or facing fluctuations. Since you are dealing with international business, आप क्योंकि international business कर रहे हैं, so foreign exchange transactions are very much important for you. अगर करेंसी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होंगी तो आपके बिजनेस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, बिकॉज आप एक इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके प्रॉफिट्स इफेक्ट होंगे या आपकी फॉरेन एक्सचेंज में जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो इफेक्ट होंगी. फ्यूचर मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट, वी डिस्कस टू क्राइटेरियाज. दीज आर द वंस कि जब फॉरेन आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो या आपने इंटरनेशनल बिजनेस करना हो, सो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट्स आर पार्ट ऑफ इट. अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको रखना है अपने माइंड में. फर्स्ट थिंग, एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस. सो एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होगी जो आपने डिसाइड की है फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट में कि इस प्राइस पर आप आफ्टर स्पेसिफिक टाइम ट्रांजैक्शन करेंगे फॉर फॉरेन करेंसी. से फॉर एग्जाम्पल आपने आज से 10 या 15 डेज के बाद डॉलर खरीदना है और आपको ये पता है कि आफ्टर 10 to 15 डेज यू विल बी इन अ नीड टू बाय डॉलर्स. हाउएवर यू नो कि पाकिस्तान में क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा हैं, सो यू नेवर नो कि 15 डेज के बाद डॉलर की प्राइस बहुत एक्सपेंसिव हो और आपके लिए डॉलर परचेज करना वुड बी डिफिकल्ट, एंड यू नो कि आपको इतने डॉलर्स 15 डेज के बाद जरूरत होंगे. What you can do is you can either enter into a future or a forward contract कि 15 डेज के बाद मैं डॉलर इतने रुपीस में लूंगा. What will happen? That is, say for example आपने कहा कि मैं 15 डेज के बाद 110 रुपीस में पर डॉलर परचेज करूंगा. So 110 is your strike or exercise price which you have decided for your future or forward contract. After 10 or 15 days, whatever time you have decided, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना है या उस कॉन्ट्रैक्ट पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है. इस केस में when you have decided the price, you don't have any other choice. आपको हर सूरत आफ्टर 15 डेज फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना है. एंड व्हाट इज बेसिकली योर ऑब्जेक्टिव कि 15 डेज के बाद डॉलर की प्राइस कुछ भी हो, आपको इतनी ही प्राइस पर डॉलर परचेज करना है. Why do you use future or forward contracts? Because you want to avoid the risk which is attached to the foreign exchange market. कि आफ्टर 10 डेज या 15 डेज जो भी टाइम आपने डिसाइड किया उस टाइम जोन में आपकी जो फ्लक्चुएशंस होनी है उसको आप अवॉइड करना चाह रहे हैं. The only difference between future and forward contract is that one is exercised through commercial banks and other one is done through the financial markets. So एक चीज तो decided है कि in future and forward contract there is simple and common thing that you want to avoid the future exchange rate fluctuations and you want to try to hedge yourself against any foreign exchange fluctuations. There was another concept which we discussed, that is put option or call options, that comes under the category of options. Now this is same with hedging technique, that you want to hedge yourself against the exchange rate fluctuation. But what is the difference between future forward contracts and option contracts? As the name suggests कि जब आपके पास options contract है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है. सेम गोज विद द कॉन्ट्रैक्ट्स कि आपके पास एक्सरसाइज प्राइस होगी, आपके पास एक टाइम स्पैन होगा जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि ओके फाइन, आफ्टर 15 डेज मुझे 110 की प्राइस से 110 रुपीज की प्राइस से पर डॉलर लेना है एंड आई वांट दिस मच ऑफ द डॉलर्स आफ्टर 10 और 15 डेज. आपने डिसाइड कर लिया. You have signed an option contract.
नाउ व्हाट इज एन ऑप्शन कि आफ्टर 15 डेज आपको सेम एक्सरसाइज प्राइस के साथ आपको जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है उस पर आपको ऑप्शन को लेना है. द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कि ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शन है आफ्टर 15 डेज या जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है, इफ यू फाइंड कि डॉलर की प्राइस 110 नहीं बल्कि 100 ही है, so why should you go for 110? Since you have got an options contract, so you have the choice in your hand whether you want to exercise it or not. However, if you are going for the other type of contract, which is future or forward contract, since it doesn't offer you the option, so that means you have to exercise that contract in future time because you wanted to hedge yourself against the risk, but again, whether the price go up or down, you have to exercise it. In case of options, you have the option that whether you want to exercise it or not, it depends on you. And when we discuss the put option or call option, so put option is something when you, and the call option, these are some options where you want to buy or you want to sell. So one represents the selling option and the others represents the buying option. When you are dealing in international business, so obviously you are dealing with international financial institutions too. And when you are talking about the international financial institutions, so we discuss the different attributes which are main point of focus for different types of international businesses. आप क्यों एक बैंक को चूज करेंगे? सो वी डिस्कस्ड द कम्पेटिटिवनेस. अगर कोई बैंक आपको 1 सेंट, एज आई सेड के $1 में 100 सेंट्स होते हैं, अगर आपकी ट्रांजैक्शन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, और कोई बैंक आपको 1 सेंट दूसरे बैंक से कम ऑफर कर रहा है रेट, या 1 सेंट ज्यादा ऑफर कर रहा है, इट विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ओवर योर ट्रांजैक्शंस. Because if you are doing it in $1 million, so 1 cent will either cost you to lose $10,000 or it can cause you to get profit of $10,000. So competitiveness of the bank is a major point which you should focus when you choose to for borrowing or lending through the banks कि आपको rates क्या offer कर रहे हैं, and then you can see simple that the small percentages points और आपके minor 0.01% भी it will cost you a lot. So competitiveness of the bank is very important. We also discussed that the banks can offer you the consultancy services. That for example, if you are doing an international business and you are going for certain type of country, so the banks can give you the consultancy that what are the economic conditions or what are the financial conditions in that country and whether you should join it for the international business or not. We also discussed that the banks can offer you the forecasting services. Since the banks are dealing on daily basis and they have more experience than your experience, what they can do is, let's say that you want to do some business in Brazil. The banks can offer you the forecasting services for Brazilian transactions, that okay fine, what can be the fluctuations in currency transactions and what can be the possibilities that you can gain profits out of that economy. So forecasting is also very important in terms of banks, that if they can offer you. However, we also discussed कि आपकी forecasting in foreign exchange is not exactly 100% same, that you should not depend on the advices. One thing, okay fine, you can have a rough idea that this can be the fluctuation when you are dealing in this particular market, but again, since the currency fluctuation have so many other factors attached to it, that you cannot think or you cannot predict the future of foreign currency, that yes, this will be the future of foreign currency and in 10 days time this currency will be of this value. We discussed the domestic money market. What is the money market? It's a market where you go for the short term transaction for less than 1 year.
We also discussed that there is a possibility that an individual is in need for the funds in domestic money market. However, we also discussed that there is a possibility कि आपकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको रिक्वायरमेंट है फॉरेन एक्सचेंज उनको रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक मनी मार्केट से फंड्स लेने की. किसी कंट्री की गवर्नमेंट इफ दे आर फेसिंग डेफिसिट इन देयर बजट्स, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनकी इनकम्स जो हैं वो उनके एक्सपेंडिचर से लेस हैं. अगर इनकम लेस है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट वुड बी इन नीड ऑफ मनी. अगर गवर्नमेंट को डोमेस्टिक मनी मार्केट में जाना है और फंड्स रिक्वायर्ड हैं, सो दैट मीन्स दे हैव टू रेज शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. On the other hand, we also discussed that there is a possibility, since we are discussing the domestic money market, so we can discuss it in both ways, that whether the government is in the phase where they are facing the shortage of funds. On the other hand, we can also discuss that the government is with excess of funds. What will happen in that case? The government will lend the money. Either the government can borrow money or they can lend money. Secondly, on the other hand, we can also discuss the companies or individuals who are either in need of money or they are with excessive savings. Domestic money market is a place where these type of transaction, where borrowers and lenders meet together in a place to basically lend or borrow at short time. So आपने अगर transactions करनी है at domestic level for short term, so that will come under the criteria of domestic money market, कि आपको अपनी domestic market से ही funds या लेने हैं या देने हैं. So आपकी जो domestic market है, domestic money market, उसमें आप अपने loans देंगे या फिर वहां से borrowings करेंगे. So अगर तो आपके loans या आपकी borrowings short term है, so that will come under money market. So let's discuss the further aspects of international financial markets के और इसमें हमारे क्या aspects आ सकते हैं. Since we discussed these type of money markets criteria कि आपके ये वही domestic money markets हैं where most countries local corporations commonly need to borrow short term funds. तो अगर आपकी requirement short term funds की है on domestic level, so you should go for domestic money market. Why we are discussing it again? Because we are going towards international money markets. तो जरा सा इसको refresh कर लें अपने mind में कि आपके domestic money market क्या है. So we will focus on international money market. Country governments may also need to borrow short-term funds to finance their budgets deficits. अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी कंट्री में बजट डेफिसिट्स हैं तो वो अपनी कंट्री की मनी मार्केट में जाके शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं या बोरोइंग्स कर सकते हैं. Individuals or local institutional investors in those countries provide funds through short-term deposits at commercial banks. तो commercial banks में जो short-term deposits रखे हुए होंगे उस country के individuals ने या फिर उस country के institutional investors ने, उनको utilize किया जा सकता है for the फंडिंग पर्पस. तो बेसिकली जो आपके कमर्शियल बैंक्स में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं वो डिपॉजिट्स वो आगे फर्दर लेंड कर देते हैं टू दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स. On the other hand, in addition to corporations and government may issue short-term securities that are purchased by local investors. तो अगर तो securities issue हो रही हैं by the government तो वो basically आपके short-term जो investors हैं उनके काम आ सकती हैं. Thus, a domestic money market in each country serves to transfer short-term funds denominated in local currency. क्योंकि हम domestic money market की बात कर रहे हैं, so हम local currency को deal कर रहे हैं. And we are talking about the local currency market क्योंकि domestic market की बात हो रही है और ये वो वाली market है जिसमें आपके short-term securities या short-term bonds fall करते हैं because this is your domestic money market. And where the local surplus units to local deficit units meet together.
तो आपके पास जो लोकल सरप्लस यूनिट्स हैं जहां पे ज्यादा सेवर्स हैं एंड दे वांट टू लेंड इट फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, मीट विद दोज पीपल हु आर इन डेफिसिट ऑफ फंड्स, जिनके पास कमी है फंड्स की, उन बोरोवर्स और सेवर्स को शॉर्ट टर्म मनी मार्केट या आपके डोमेस्टिक मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स को डील करती है, मीट कराती है एफिशिएंट वे में। सेम क्राइटेरिया को अगर आप अंडरस्टैंड करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जहां आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं और आपको इंटरनेशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, सो दैट कम्स अंडर इंटरनेशनल मनी मार्केट। अब मनी मार्केट इज सेम सिंस वी डिस्कस्ड कि मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म लेंडिंग को रिप्रेजेंट करती है। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन दिस मार्केट सर्व multinational companies by accepting deposits and offering loans in a variety of currencies to facilitate the international business. अब एक तो मेजर डिफरेंस आया कि हमने डिस्कस किया कि आपके डोमेस्टिक मनी मार्केट जो है वो लोकल करेंसी में डील कर रही है। However, on the other side, financial institutions, those who are dealing with international money market funds, so are one thing that they are dealing with short term securities or bonds on international level, and second thing they will be dealing with foreign exchange. तो आपके domestic money market में local currency use होगी, however in international money market में आपके foreign currency use होगी। Both the European and Asian money markets originated as markets involving mostly dollar-denominated deposits. So आपके we have discussed कि आपके international business is booming in past 30 years. So obviously transactions भी involve हो गई उसमें, international money market की requirement भी ज़रूरी हो गई। So उस केस में European, Asian money markets भी introduce हुई because usually जो markets international business में डील कर रही थी they were only dealing in terms of dollars, तो वो डॉलर्स की डिनोमिनेशन ज्यादा थी and then they required जो यूरोपियन रीजन है या एशियन रीजन है that they have to introduce their own money markets. The growing standardization of global banking regulation has contributed towards the globalization of the industry. जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे या इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस की और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, सो ऑब्वियसली सिंस द होल वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड, अब जब ग्लोबलाइज हो गई सारी वर्ल्ड, उसमें क्या है कि आपके कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के साथ इन टच हैं या फिर लिबरलाइज्ड हो गई वर्ल्ड। सो दैट मीन्स कि आपके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं। अब अमेरिका से यूके बिजनेस हो रहा है, यूके से पाकिस्तान हो रहा है, पाकिस्तान से इंडिया हो रहा है, इंडिया से ईरान हो रहा है, से फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट रीजन्स में बिजनेस कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली लिबरलाइज्ड हो गई इकोनॉमीज इन अ वे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिबरलाइज्ड हो गई या ओपन हो गई। जब आपके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांजैक्शन हो रही है, सो दैट मीन्स आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बॉन्ड मार्केट यूज कर रहे हैं या आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री की स्टॉक मार्केट यूज कर रहे हैं। इन ऑल दीज केसेस व्हाट्स हैपनिंग दैट यू आर इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज। सो व्हाट विल हैपन कि अगर सब कंट्रीज अपनी ही रेगुलेशंस के अगेंस्ट सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आप चाहे अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे यूके में बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे किसी एशियन रीजन में बिजनेस कर रहे हैं, आप ट्रांजैक्शंस अपने लिहाज से कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली हर कंट्री का मोड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिफरेंट होगा, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो अगर तो सब के सब कंट्रीज अपनी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट बिजनेस करेंगे, सो व्हाट विल हैपन? बहुत डिस्क्रिपेंसीज आएंगी आपके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स में, फाइनेंशियल सिस्टम्स में। सो जो ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन है, व्हाट्स दैट कि आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजर स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए गए हैं फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कि मेजर ट्रांजैक्शंस जो होनी है या आपकी जितनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होनी है उसके लिए मेजर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं इन फाइनेंशियल रेगुलेशंस, कि आपके फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है, जब आप फाइनेंसेस से डील कर रहे हैं तो आपके मेजर जो स्टैंडर्डाइज टाइप के रूल्स होंगे वो क्या हैं। One more aspect in this regard, since we discussed कि जो यूरोपियन रीजन है उसने अपने इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काफी स्टेप्स लिए हैं।
They introduced European Union where different types of European countries joined them, और उन countries की joining के बाद उन्होंने उन countries के लिए एक currency introduce कराई which is euros. On the other hand, they also discussed the Single European Act. Why they introduced that? To standardize the things and to facilitate the international business. The Single European Act opened up the European banking industry and increased its efficiency. तो अगर तो सिंगल एक्ट के अगेंस्ट तमाम यूरोपियन कंट्री डील करेंगे, what will happen? एक स्टैंडर्डाइज टाइप का फॉर्मेट होगा जिसकी वजह से आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो एक एफिशिएंट मैनर में वर्क करेगी, एटलीस्ट फॉर द यूरोपियन रीजन, बिकॉज यूरोपियन रीजन में जितने बैंक्स हैं वो सब उन एक्ट को फॉलो करेंगे जो कि इस सिंगल यूरोपियन एक्ट में डिफाइन किया गया है. Now, what are the clauses in single European Act? One thing, capital can flow freely throughout the Europe. तो एक तो चीज ये कि आपका कैपिटल जो है वो फ्रीली मूव करेगा थ्रू आउट द यूरोपियन रीजन. तो जितने कंट्रीज आपके यूरोपियन रीजन में आते हैं कैपिटल उसमें फ्रीली मूव करेगा. बैंक्स कैन ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ लेंडिंग, लीजिंग एंड सिक्योरिटीज एक्टिविटीज इन द यूरोपियन रीजन. सो बैंक्स इन एनी कंट्री इन यूरोपियन रीजन जो होगा किसी भी कंट्री में वो है, दे कैन ऑफर डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ सर्विसेज वो आपको ऑफर कर सकते हैं, जिसमें आपके लेंडिंग्स आ जाती हैं, लीजिंग्स आ जाती हैं और सिक्योरिटीज से रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाती हैं. रेगुलेशंस और रूल्स रिगार्डिंग कंपटीशन, मर्जर्स जब आपकी कंपनीज मर्ज करती हैं या ज्वाइन कर लेती हैं, एंड टैक्सेस आर सिमिलर थ्रू आउट द यूरोपियन यूनियन. तो अगर तो रेगुलेशंस या रूल्स आपके पूरे यूरोपियन रीजन में सेम हो जाते हैं, व्हाट विल हैपन? सो ऑब्वियसली आपका यूरोपियन रीजन सेम लाइंस पे काम करेगा, तमाम कंट्रीज सेम डायरेक्शंस फॉलो करेंगे. इन केस ऑफ कंपटीशन हो रहा है तो उनको पता है कंपटीशन के लिए क्या क्या रूल्स हैं, आप किस हद तक कॉम्पीट कर सकते हैं, आपने कॉपीराइट्स को फोकस करना है, आपने पेटेंट्स को फोकस करना है, स्टैंडर्ड रूल्स क्या हैं, आप कंपटीशन में किस टाइप की इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं और किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं. मर्ज अगर कर रही हैं टू कंपनीज तो आपके ऑल ओवर यूरोपियन यूनियन सेम रूल्स फॉलो होंगे कि दो कंपनीज कब मर्ज कर सकती हैं और किन रूल्स के अगेंस्ट उन दो कंपनीज को मर्ज करना है. Whether you are talking about Greece and Italy, whether you are talking about Switzerland, whether you are talking about any country in the region of European Union, so rules and regulations will be same. Taxes applied or taxes received should be same in all over the European region. So obviously अगर तो whole region इस type की financial regulations को follow कर रहा है, so whole region की efficiency के increase होने के chances ज़्यादा हैं. Now European region ने इन तमाम measures को introduce कराया. Why? Because they want to promote their international business. एंड दे नो इट कि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी इन्वॉल्व हैं, बिकॉज वी डिस्कस कि आप अगर किसी कंट्री में फाइनेंशियल एसेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द हेड ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. तो अगर तो आपके अमाउंट्स बाहर किसी कंट्री में जा रहे हैं, सो दैट विल कम अंडर द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज या फिर इम्पोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिकॉज फंड्स आपके कंट्री से बाहर जा रहे हैं. फंड्स अगर आपकी कंट्री में आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आ रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, सो दैट इज बेसिकली कमिंग अंडर द हेड ऑफ एक्सपोर्ट्स. सो अगर तो रेगुलेशन सेम होंगी फॉर फाइनेंशियल इंडस्ट्री ऑल्सो, सो व्हाट विल हैपन कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्लरिश करेगा. A bank established in any one of the European countries has the right to expand into any or all of the other European countries. तो अगर तो एक बैंक इटली में एस्टैब्लिश हुआ है, नाउ इट वांट्स टू गो फॉर द अदर यूरोपियन कंट्री, से फॉर एग्जांपल ग्रीस में एस्टैब्लिश करना चाहता है अपने आप को, सो देयर इज अ परमिशन अवेलेबल दैट दे कैन गो एंड दे कैन एस्टैब्लिश देमसेल्व्स. What will happen?
ऑब्वियसली द बैंक्स हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी कि वो अपने आप को एफिशिएंट मैनर में एक कंट्री में इंट्रोड्यूस कराएं, मैच्योर करें, एंड देन दे कैन मूव ऑन टू द अदर यूरोपियन कंट्री. So obviously all these things are important for the production or for the creation of single act, and because of that single act आपके यूरोपियन रीजन में इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोट होगा और फर्दर फ्लरिश करेगा. जी, so that was the single European Act. So let's see what happened next. Before 1987, capital standard imposed on banks varied across countries, which allowed some banks to have comparative global advantage over others. So 1987 से पहले बैंक्स, जिस तरह के मैंने पहले बताया कि अगर तो उनको उन्हीं के तरीके पे काम करने दिया जाए, सो ऑब्वियसली हर बैंक अपने स्टैंडर्ड के अगेंस्ट काम करेगा और एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी. या फिर दूसरे केस में ये है कि जो बताया गया कि सम बैंक्स टू हैव अ कंपैरेटिव ग्लोबल एडवांटेज, कि अगर तो कुछ कंट्रीज में बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एफिशिएंट हैं, सो वो कंट्रीज या वो बैंक्स जो हैं ज्यादा बेनिफिट लेके जाएंगे उन बैंक से जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे. Although they want to perform better, but since they don't have any type of guidance, so that's why they cannot perform. तो अगर तो एक ही एक्ट बना दिया जाए और एक ही स्टैंडर्ड बना दिया जाए और उसके अगेंस्ट तमाम बैंक्स काम करें, तो उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी लेवल काफी बैंक्स का या तमाम बैंक्स का इंप्रूव किया जा सकता है. In December 1987, 12 major industrialized countries attempted to resolve the disparity by proposing uniform bank standards. So in 1987, 12 major industrialized countries जो थे उन्होंने डिसाइड किया, and they decided कि तमाम बैंक्स को एक ही रेगुलेशन के थ्रू वर्क करना है, because we are talking about the international finance and we are talking about the international business. सो अगर कोई बैंक्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे या कुछ बैंक्स अगर रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, सो सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस, सो देयर आर चांसेस कि इंटरनेशनल लेवल पे जब आप बिजनेस करेंगे तो एक कंट्री की लैक ऑफ परफॉर्मेंस दूसरे कंट्री के लिए क्राइसिस क्रिएट कर दे. बिकॉज अभी हमने बात की कि लिबरलाइज्ड हो गई है इकोनॉमी और एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर रहा है, दूसरा कंट्री किसी तीसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर रहा है, तो एक चेन है जिसके थ्रू कंट्रीज लिंक्ड हैं. अगर बीच में से कोई कंट्रीज अच्छा परफॉर्म या उनके बैंकिंग सिस्टम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या वो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन कि वो पूरी चेन के इफेक्ट होने का चांस है. In July 1988, in the Basel Accord, central bank governors of the 12 countries agreed on standardized guidelines. So वही 12 countries जो हमने बात की इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के, जिन्होंने डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए या एक स्टैंडर्डाइज टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए जिसके अगेंस्ट तमाम बैंकिंग सिस्टम वर्क करें, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस. सो इन 1998 12 सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे इन्हीं कंट्रीज के, उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने स्टैंडर्डाइज टाइप के गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस कराई जो कि वी कॉल देम एज बेसल अकॉर्ड 1. No, so why did we found the need for Basel Accord 2 जबकि Basel Accord 1 बन गया था in 1988? Banking regulators that form the so-called Basel Committee are completing a new accord which is called Basel 2 to correct some inconsistency that still exist. That means कि जब Basel Accord 1 approve हुआ और country started to work on Basel Accord 1, so they found कि कुछ अभी भी flaws हैं जिनको reduce करना चाहिए, and then they improved on the standards and Basel Accord 2 was introduced. For example, banks in some countries have required better collateral to back their loans. कुछ कंट्रीज में कोलैटरलाइज्ड जो लोन्स थे जिसमें आपको कोलैटरल देना होता है, कुछ गारंटी करना होता है टू गेट सम लोन, उनकी जो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड था उन कोलैटरलाइज्ड लोन का उतना अच्छा नहीं था और उनको प्रॉपर तरीके से लोन्स को कोलैटरलाइज करना था या उनके बैक पे जो सिक्योरिटीज थी उनको फॉर्मल वे में स्टैंडर्डाइज्ड वे में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराना था. The Basel Accord 2 is attempting to account for the such differences among the banks. So Basel Accord 2 में कुछ इस तरह के regulations पास किए गए जिसके थ्रू इस टाइप की जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी इन Basel Accord 1 उनको रिमूव किया जा सके. In addition, this accord will account for operational risk
which was also a point of consideration for the Basel Accord 1 people who were making this, or the committee who were basically focused on Basel Accord 1 and 2, that operational risk is very much important कि जिसको कम किया जाए. Operational risk can be defined by the Basel Committee as the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes और सिस्टम्स. तो अगर तो आपने प्रॉपर वे में कुछ आपने इंटरनल प्रोसेस नहीं फॉर्म किए, ऑल्दो बाय फॉलोइंग द बेसल अकॉर्ड 1, सो व्हाट विल हैपन दैट यू विल फेस द प्रॉब्लम. उसको रिमूव करने के लिए, ऑपरेशनल रिस्क को रिमूव करने के लिए बेसल अकॉर्ड 2 में फर्दर रेगुलेशंस पास की गई. So we have discussed the international money market and the standardized types of markets, that there is a requirement कि जब आप international business कर रहे हैं तो आपको अपना format standard रखना है, और अगर आप standardized type के format को follow कर रहे हैं then you have to focus on the Basel Accords के जी Basel Accords में क्या standardized type की regulations for the banking industry introduce कराई गई हैं, so that you should think in those terms. That was the international money market. Now let's discuss about the general international credit market. The international credit market is well developed in Asia and is developing in South of America. Periodically, some regions are affected by an economic crisis which increases the credit risk. तो हम क्योंकि इंटरनेशनल क्रेडिट की बात कर रहे हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस जिन कंट्रीज में आते हैं उनके लिए क्रेडिट रिस्क उन कंट्रीज में इंक्रीज हो जाता है. Financial institutions tend to reduce their participation in those markets when credit risk increases. So जिन कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस ज्यादा हैं उन कंट्रीज में क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है. सो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि फोकस कर रहे हैं लोन्स देने पे, वो क्रेडिट उन कंट्रीज में देना कम कर देते हैं जहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर हैं. Thus, even though funding is widely available in many markets, but the funds tend to move towards the markets where economic conditions are strong and credit risk is tolerable. So that means although all over the world funds तो available हैं, there is possibility के funds आपको मिल सकें, but the conditions in your economy, if they are or if your economy is facing the crisis, so there is a possibility कि क्योंकि आपकी economy में crisis है और आपके पास credit risk होने का chance ज़्यादा है, तो जितनी भी funding agencies हैं या banks हैं, they will focus on those countries या economies जहाँ पे financial conditions या economic conditions बेहतर हैं और credit risk के chances कम है, या फिर वहां पर बहुत चांस अगर है भी तो बहुत कम है कि वहां पर क्रेडिट डिफॉल्ट होगा. सो ओवरऑल इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट का क्राइटेरिया क्या है कि फंड्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन जिन इकोनॉमीज में क्राइसिस हैं या जिन इकोनॉमी में इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहां पर वो एजेंसीज जो फंड्स प्रोवाइड करती हैं वो इस चीज को अवॉइड करते हैं कि उन इकोनॉमीज में फंड्स प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि क्रेडिट रिस्क का चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू दोज कंट्रीज के जहां पर क्रेडिट रिस्क का चांस नहीं है या फिर क्रेडिट डिफॉल्ट होने का चांस नहीं है और इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही बेहतर है, तो वहां पर फंडिंग एजेंसीज इजीली लोन्स या फंड्स प्रोवाइड कर देती हैं. Multinational companies sometimes obtain medium-term funds through banks located in foreign markets. Now, what is Euro credit loans? Euro credit loans refer to the loans of 1 year or longer extended by banks in Europe to foreign multinational companies or government agencies. So ये वो वाले क्रेडिट हैं यूरो क्रेडिट जो कि लोन्स ऑफर करते हैं फॉर 1 ईयर के लिए या फिर लॉन्गर पीरियड्स के लिए, और ये ऑफर होते हैं बैंक्स के थ्रू इन यूरोप टू जो मल्टीनेशनल आपकी कंपनीज हैं या फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को दिए जाते हैं. फ्लोटिंग रेट्स क्या है? इफ यू कंसिडर योर टर्म्स के फ्लोटिंग रेट्स आर इन्वॉल्व्ड बाय ऑफरिंग लोन्स, तो आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि फ्लोटिंग रेट्स वो रेट्स हैं व्हाइल ऑफरिंग लोन्स दैट आर बेस्ड ऑन लाइबोर,
फॉर एग्जाम्पल आपके लंदन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूरोपियन रीजन की बात कर रहे हैं तो लाइबोर इज लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट विच इज द रेट कॉमनली चार्ज फॉर लोन्स बिटवीन बैंक्स। तो अगर आपके फ्लोटिंग रेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं लोन्स में, सो दैट इज द इंटर बैंक लोन रेट विच इज बेसिकली in case of Europe it's LIBOR. Sometimes a single bank is unwilling to or unable to lend the amount needed by a particular multinational company or government agency. तो अगर तो कोई सिंगल बैंक या तो अनविलिंग है आपको फुल लोन देने के लिए, या फिर बैंक के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको फुल लोन प्रोवाइड कर सके, सो व्हाट दे कैन डू इज a lead bank may organize a syndicate of banks to underwrite the loans. तो एक लीड बैंक बेसिकली एक सिंडिकेट या ग्रुप फॉर्म करेगा बैंक्स का जो कि लोन प्रोवाइड कर सकें। Borrowers that receive a syndicated loan typically incur front-end management and commitment fees in addition to the interest on the loan. So अगर तो आपको syndicate loan ऑफर हो रहा है जो कि basically a group of banks ऑफर कर रहे हैं, what will happen in that case कि ना सिर्फ आपको interest rate पे करना है बल्कि उसके साथ साथ आपको front-end management fees और commitment fee भी पे करनी पड़ेगी, because in that case different banks are involved. इट्स नॉट ओनली द केस कि जहां पे सिंगल बैंक इन्वॉल्व है बल्कि डिफरेंट बैंक्स इन्वॉल्व हैं। सिंडिकेटेड लोन्स कैन बी डिनोमिनेटेड इन अ वेराइटी ऑफ करेंसीज। सो जब आपका सिंडिकेट फॉर्म होता है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डिफरेंट करेंसीज की फॉर्म में सिंडिकेट फॉर्म हो जाए। द इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन करेंसी डिनोमिनेटिंग द लोन, the maturity of the loan and the credit worthiness of the borrower. So जो interest rate charge होगा आपके लोन पे ये दो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो ये कि जो करेंसी इन्वॉल्व हो रही है या जिस डिनोमिनेशन या जिस करेंसी में आपको लोन चाहिए, इट डिपेंड्स कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। सेकेंडली द मेच्योरिटी ऑफ द लोन कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए। एंड थर्ड विच इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आपके जो बोरोअर है या जो लोन लेना चाह रहा है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, यानी वो कितना क्रेडिट वर्दी है, आप उसको कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। अगर तो जो बोरोअर आपसे लोन ले रहा है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस काफी हाई है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन ऑफर हो जाए, कि आपको उसके ऊपर कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े। However, on the other hand, obviously, अगर तो बोरोअर की क्रेडिट वर्दीनेस बहुत कम है और there are chances कि ये जो बोरोअर है इसकी पिछली क्रेडिट हिस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं है, what will happen in that case? That there is a possibility कि आपको लोन अगर ऑफर हो तो इंटरेस्ट रेट भी हाई हो, because then you have to pay more on your loan. Interest rates on syndicated loans are commonly adjustable according to the movements in an interbank lending rate, and the adjustments may occur every 6 months to every year. Because syndicated loan जो आपको ऑफर हुआ है ये ग्रुप ऑफ बैंक्स ने ऑफर किया है, अगर तो आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी एक सिंगल बैंक के साथ होती, then in that case you are basically relying on the rate what that bank is offering. However, in this case, क्योंकि आपका लोन ग्रुप ऑफ बैंक्स ने ऑफर किया है, in that case इंटर बैंक लोन का जो रेट है या इंटर बैंक लेंडिंग रेट जो है that is also very important. और एडजस्टमेंट्स की पॉसिबिलिटी है कि एवरी 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर आपके लोन के ऊपर एडजस्टमेंट डाली जाए बिकॉज ऑफ दैट इंटर बैंक लेंडिंग रेट। सिंडिकेटेड लोन्स नॉट ओनली रिड्यूस द डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क क्या है कि आपका जो लोन है वो आप पे बैक नहीं कर सकेंगे। सो सिंडिकेटेड लोन्स नॉट ओनली रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ अ लार्ज लोन to the degree of participation for each individual bank, but they can also add an extra incentive for the borrower to repay the loan. अब ऑब्वियसली आपका जो सिंडिकेटेड लोन है वो एक सिंगल एंटिटी ने या सिंगल बैंक ने नहीं आपको दिया हुआ, तो डिफॉल्ट रिस्क भी कम है क्योंकि ग्रुप ऑफ बैंक्स इन्वॉल्व हैं एंड दे विल बी मॉनिटरिंग द लोन टुगेदर, प्लस
आपको सिंगल बैंक के लिए रिस्क कम है, क्योंकि जितने ग्रुप्स में बैंक्स इन्वॉल्व हैं उन सबको पता है कि जो सिंडिकेटेड लोन है वो डिवाइड हुआ है तमाम बैंक्स के बीच में। सो आपके पास डिफॉल्ट के केस में बहुत ज्यादा लॉस का चांस नहीं है, या दूसरे केस में ये कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग ज्यादा होने की वजह से डिफॉल्ट का चांस ही नहीं है। If a government defaults on a loan to a syndicate, word will quickly spread among banks and the government will likely have difficulty obtaining future loans. So if for example बैंक को syndicate loan दिया हुआ है, बैंक ने किसी गवर्नमेंट को syndicate लोन दिया हुआ है और गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर देती है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट सिंडिकेट को लोन वापस नहीं देती, व्हाट विल हैपन कि ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट किया है तो वर्ड ऑफ माउथ विल राइज कि एक दूसरे से बात होगी, बैंक से एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे कि इस गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया है, इस गवर्नमेंट ने लोन वापस रीपे नहीं किया है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट किया तो यही गवर्नमेंट जब किसी और बैंक के पास लोन लेने जाएगी तो इनको फर्दर लोन्स ऑफर नहीं होंगे। Borrowers are therefore strongly encouraged to repay syndicated loans promptly. So borrowers जिन्होंने लोन लिया हुआ है उनके लिए इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप फौरन से अपना सिंडिकेट लोन ड्यू टाइम पीरियड में जो आपके साथ डिसाइडेड है उसमें पे बैक करें। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द बैंक्स, सिंडिकेटेड लोन्स इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीपेमेंट। तो अगर आप बैंक्स के पर्सपेक्टिव में देखें, विच इज ऑन द अदर साइड, कि बैंक्स के लिए भी सिंडिकेटेड लोन में एक एडिशनल पॉइंट है या पॉजिटिव पॉइंट है दैट दे विल गेट बैक देयर लोन्स क्विकली, बिकॉज इसमें ग्रुप ऑफ बैंक इन्वॉल्व है। सो सिंडिकेटेड लोन्स जो हैं वो मेजर इंस्टीट्यूशंस को या बैंक्स गवर्नमेंट को अगर लोन दे रहे हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ड्यू टाइम में आपका लोन पे बैक हो जाएगा। So till now we have discussed that what are different types of international credit और the syndicated loans कि आप किस टाइप से ग्रुप में फॉर्म करके बैंक्स आपको लोन्स ऑफर कर सकते हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट की बात करते हैं, so obviously there are two possibilities, either you would get the loan through bonds or you will get it through shares. So it depends on your requirement and on your criteria that what type of category you want to choose. Again, when we are discussing in terms of international finance. So we are discussing in terms of international bond market and we are not talking about the domestic market. So international bond market where we are talking in terms of international or financial transactions, and these transactions are in terms of different foreign currencies. Till now we have discussed that what can be the possibilities for international credit and how a syndicate loan can help to avoid the risk of default. Now we know that on international grounds जब आपको लोन चाहिए, so you can either go for the international bond market or you can go for the international stock market. It depends कि आपको किस मार्केट से लोन लेना है या किस मार्केट में लोन इशू करना है। एंड वी हैव डिस्कस्ड कि किन इंटरेस्ट रेट क्राइटेरियाज के ऊपर या किन मार्केट्स को आप फोकस कर सकते हैं और किस तरह से फोकस कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट? Multinational companies can obtain long-term debt by issuing bonds in their local markets and can also access long-term funds in foreign markets. So अगर मल्टीनेशनल कंपनीज को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, सो दे कैन इशू बॉन्ड्स इन देयर ईदर, या तो वो अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही कर लें, डोमेस्टिक मार्केट में फंड्स रेज कर लें, और अदरवाइज लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए रिक्वायरमेंट है, सो दे कैन ऑल्सो गो फॉर द फॉरेन मार्केट। Multinational companies may choose to issue bonds in international bond market for 3 reasons. तो आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको क्या जरूरत है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएं या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएं और फंड्स रेज करें। There are 3 options or there are 3 points due to which multinational companies इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाती हैं या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को चूज करती हैं टू रेज द फंड्स। Number 1, first, issuers recognize that they may be able to attract a stronger demand by issuing their bonds in a particular foreign country rather than in their home country.
सो एक तो मल्टीनेशनल के माइंड में है कि अगर वो फॉरेन कंट्री में अपने बॉन्ड्स रेज करेंगे सो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें और उनके डोमेस्टिक इकोनॉमी में इतनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, या फिर ये कि एज कम्पेयर टू देयर डोमेस्टिक इकोनॉमी फॉरेन कंट्री में बॉन्ड्स रेज करने से उनको ज्यादा एक्सपोजर भी मिलेगा और ज्यादा फंड्स रेज होने के चांसेस भी हैं। Secondly, multinational companies may prefer to finance a specific foreign project in a particular currency and therefore they attempt to obtain funds where that currency is widely used. अब मल्टीनेशनल कंपनी को कोई अपना स्पेशल प्रोजेक्ट है जो कि किसी खास करेंसी में ही लॉन्च करना है, उस केस में वो उन्हीं फॉरेन मार्केट्स में जाएंगे जहां पर वो करेंसी वाइडली अवेलेबल हो, ज्यादा अवेलेबल हो। सो एक रीजन तो ये हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनीज फर्स्ट जो रीजन है वो ये सोच रही हैं या उनको ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में जो आपके फंड्स अवेलेबल हैं या फिर जिस तरह से उन्होंने फंड्स रेज करने हैं वो उस तरह से अवेलेबल नहीं है जितनी अपॉर्चुनिटी फॉरेन मार्केट्स में अवेलेबल है। अगर वो अपने बॉन्ड्स फॉरेन मार्केट में रेज करेंगे सो देयर आर चांसेस कि उनको इजीली क्विकली फंड्स रेज हो जाएं। हाउएवर द सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इज कि आपके मल्टीनेशनल कंपनीज ये भी सोच सकती हैं या फिर हो सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनी किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूं जो कि वो किसी खास करेंसी में ही लॉन्च करना चाहती हैं। उस करेंसी को अचीव करने के लिए दे विल लॉन्च देयर बॉन्ड्स इन दैट स्पेसिफिक मार्केट जहां पे वो फील करते हैं कि ये करेंसी वाइडली अवेलेबल है। इन थर्ड केस, financing in a foreign currency with a lower interest rate may enable a multinational company to reduce its cost of financing, although it may be exposed to exchange rate risks. अब ये भी हमने डिस्कस किया कि there is a possibility कि आपको इंटरेस्ट रेट बाकी फॉरेन कंट्रीज में कम चार्ज हो रहा है और आप जब लोन लेते हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि कोई भी कंट्री आपको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर कर दे आपकी मल्टीनेशनल कंपनी को एज कंपेयर टू योर डोमेस्टिक मार्केट। सो व्हाट विल हैपन कि आप फॉरेन मार्केट में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर आपको लोन चीप प्राइस पे अवेलेबल है। अगर आपको कम प्राइस पे लोन फॉरेन मार्केट्स में अवेलेबल है, what will happen that obviously you will go into the international bond market rather than staying to the domestic bond market. So एक चीज कि या तो आपको पॉसिबिलिटी है कि डोमेस्टिक मार्केट की कम एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में ज्यादा चांसेस हैं आपको लोन मिलने के, तो आप इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट चूज करते हैं। सेकेंडली, जब आपने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च ही किसी स्पेसिफिक करेंसी में करना है एंड यू आर इन नीड ऑफ फॉरेन करेंसी इन दैट डिनोमिनेशन, तो क्या होगा कि आप ऑब्वियसली इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट चूज करेंगे, वो मार्केट जहां पे जो करेंसी आपने चूज की है वाइडली अवेलेबल हो। फाइनली, इन फॉरेन करेंसी विद लो इंटरेस्ट रेट कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि फॉरेन कंट्री में लोन पर इंटरेस्ट रेट कम चार्ज हो रहा है एज कम्पेयर टू योर डोमेस्टिक मार्केट। सो इन दैट केस यू वुड प्रिफर टू गो फॉर इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट रादर देन स्टिकिंग योर सेल्फ विद डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट। Institutional investors such as commercial banks, mutual funds, insurance companies and pension funds from many countries are major participants in the international bond markets. So हमने जो तीनों क्राइटेरियाज डिस्कस किए, इनके मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं इन इंटरनेशनल मार्केट्स जो कि इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको इसमें आ रही हैं आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स। सो ये वो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट को वाइडली यूज कर रहे हैं। Now let's discuss the different types of international bonds. So the two main categories are, first one is called your foreign bond or parallel bond. What are these bonds? These are the bonds denominated in the currency of the country where they are placed, but issued by the borrowers who are foreigners to the country. So that means कि आपने जिस करेंसी में
लॉन्च किए हैं ये बॉन्ड्स वो उसी कंट्री की करेंसी है। से फॉर एग्जाम्पल अमेरिका ने पाकिस्तान में बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं पाक रुपीज में, तो आपके रुपीज में बॉन्ड लॉन्च हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी पाक रुपी है, बट इशूड बाय द बोरोवर फॉरेन टू द कंट्री, लेकिन इशू फॉरेनर्स के थ्रू हो रहे हैं। सो दैट मीन्स ऑब्वियसली अमेरिकन आर फॉरेनर्स टू पाकिस्तान, तो अमेरिकन पाकिस्तान में फॉरेन बॉन्ड्स लॉन्च कर रहे हैं इन पाकिस्तानी करेंसी। दे आर कॉल्ड योर फॉरेन बॉन्ड्स और पैरेलल बॉन्ड्स। सो लेट्स रीड इट अगेन to get a more clear idea. Bonds denominated in the currency of the country. We take the example of Pakistan, currency of the country, कि पाकिस्तान की करेंसी पाक रुपी है, where they are placed by the issuer, but issued by borrowers foreign to the country. तो अमेरिका ने लॉन्च किए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जो बोरोवर है वो अमेरिकन हैं और दे आर फॉरेनर टू पाकिस्तान। नाउ अदर कैटेगरी विच इज कॉल्ड यूरो बॉन्ड्स, बॉन्ड्स दैट आर सोल्ड इन कंट्रीज अदर देन द कंट्री ऑफ द करेंसी डिनोमिनेटिंग द बॉन्ड्स आर कॉल्ड यूरो बॉन्ड्स। अब अगर डॉलर्स में बॉन्ड लॉन्च हो जाते हैं पाकिस्तान में, तो करेंसी हमारी पाकिस्तानी रुपीस है, लेकिन जो बॉन्ड लॉन्च हुए हैं वो डॉलर्स में लॉन्च हुए हैं, बिकॉज बॉन्ड्स दैट आर सोल्ड इन कंट्रीज अदर देन द कंट्री ऑफ द करेंसी। तो क्योंकि डॉलर हमारी करेंसी नहीं है, बट पाकिस्तान में डॉलर्स में बॉन्ड लॉन्च हुए हैं, और वो बॉन्ड्स दे विल बी कॉल्ड यूरो बॉन्ड्स। Usually, Euro bonds are issued in bearer form, that they pay annual coupons पे होंगे and have the call provisions. तो आपके annual coupons तो वो हैं कि जब आपको bonds, for example अगर आपने bonds purchase किए हैं तो आपको annual coupon rate उस पर मिलेगा, जो कि आपका interest rate है जो आपको मिलेगा क्योंकि आपने purchase किए bonds. So by the end of the maturity, what you gonna do is you will get the whole amount जो आपने इन्वेस्ट किया in the bonds, और along with that you will also get the last amount of your coupon, क्योंकि for example 5 years maturity का आपने बॉन्ड खरीदा, उस पर annual coupons involved हैं। We are talking about euro bonds, right? जो कि आप फॉर एग्जाम्पल डॉलर में डिनोमिनेट हुए हैं और पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं, तो आपके पास क्या है कि यूरो बॉन्ड्स में आपको एनुअल कूपन 5 इयर्स मेच्योरिटी थी, एनुअल 5 इयर्स के कूपन्स मिलेंगे, और एंड ऑफ पीरियड आपने जितना अमाउंट पे बॉन्ड परचेज किया था वो आपको टोटल भी अमाउंट वापस हो जाएगी। दीज बॉन्ड्स ऑल्सो हैव द कॉल प्रोविजंस, क्योंकि जब आप बॉन्ड खरीद लेते हैं सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर तो ये कॉलेबल बॉन्ड्स हैं सो देर वुड बी अ प्रोविजन कि अगर तो बोरोवर चाहे जिसने बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं वो वापस लेना चाहे, सो दे कैन कॉल देम बैक। सो इन टर्म्स ऑफ यूरो बॉन्ड्स देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन बी कॉल्ड बैक along with the set rules and regulations or whatever terms and conditions were decided. Some of the bonds also carry convertibility clauses or have variable rate provisions. तो जो एक चीज तो ये कि convertibility clauses कि आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके ऊपर अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड आपने खरीदा है तो आपका बॉन्ड फ्यूचर में जाके शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। Now what is the difference between a bond holder and a shareholder? As I told you earlier कि जो bond holder है he is not supposed to be the owner of the company. से आपने अगर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की है तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपके पास उस कंपनी के इस हद तक राइट्स अवेलेबल हैं या आप उसके इतने % के ओनर हैं। However, if you are a shareholder of the company, say for example 10% शेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं किसी कंपनी के, so that means you are basically the owner of that company for a percentage of 10%. एंड दे हैव द वेरिएबल रेट प्रोविजंस कि जिस तरह मैंने कहा कि आपने 5 इयर्स मेच्योरिटी पे बॉन्ड लिया, 5 कूपन्स आपको पे होंगे, यूजुअली दे आर कांस्टेंट रेट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको वेरिएबल रेट्स पे बॉन्ड ऑफर हो। दैट मीन्स ईयर 1 में आपको ये मिलेगा, ईयर 2 में इट विल बी डिफरेंट, दैट विल वेरी फ्रॉम ईयर 1, ईयर 3 में डिफरेंट, ईयर 4 में डिफरेंट।
So 70 to 75% of euro bonds are denominated in US dollar. So आपकी जो यूरो बॉन्ड मार्केट है, जिसमें हमने कहा कि किसी भी कंट्री में जाके किसी दूसरी करेंसी की डिनोमिनेशन में आप बॉन्ड्स लॉन्च कर सकते हैं, वो दूसरी करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉलर इज बेसिकली डोमिनेंट, के डॉलर में लॉन्च हो रहे हैं 70 to 75% ऑफ द बॉन्ड्स. Euro bonds are underwritten by multinational syndicate of investment banks and simultaneously placed in many countries. So आपके जो यूरो बॉन्ड्स हैं वो बेसिकली अंडरराइट होते हैं थ्रू मल्टीनेशनल सिंडिकेट, जो कि ग्रुप है मल्टीनेशनल कंपनीज का ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स, और फिर उसके बाद इनको डिफरेंट कंट्रीज में लॉन्च कर दिया जाता है. Let's see this diagram where we are comparing the interest rate among currencies. Annualized short-term interest rates among countries in 2001, the rates are given. You can see the huge difference between the interest rates. These are the annualized short-term interest rates. And you can take the example, for example, Mexico is with 15%. However, you can see that what is the minimum value we can find on this? Yes, Japan with 1% on the rightmost corner and Singapore with 2%. So we can also say that obviously when we discuss that these rates depends on the demand and supply of the money, and depends that how much savings your country is having, how much money is available, on the basis of which the international interest rates will be discussed or will be constructed. So in our last lecture we had discussed that how do you determine the interest rate, or when you are having larger supply of funds, so whether you will offer low rates or whether you will offer higher rates of interest. So it all depends on the demand and supply of the money supply in your economy, or the savings which you are having in your country. So if you are having more savings in the economy and you are having more available funds for loans, so the interest rates will be lower or higher. And when you are having less fund or shortage of funds, so whether you will offer higher interest rates or lower interest rates. So this is a point of discussion or point of view which you should think about it, and we have already discussed it in our previous lecture कि जब आपके कंट्री में लोनेबल फंड्स ज्यादा हो तो इंटरेस्ट रेट हायर होंगे या लोअर होंगे. ऑन दी अदर हैंड, जब आपके कंट्रीज में लोनेबल फंड्स की शॉर्टेज है तो इंटरेस्ट रेट हायर ऑफर्ड होंगे या लोअर होंगे. Let's review this lecture. First, we discussed the domestic and international money markets, where we said that there can be short-term loans available or borrowers available, and the basic objective of international money market is that the borrowers and lenders should meet together, and this market would basically provide the platform on international level that borrowers and lenders are coming together and they will do their transactions on short-term basis. We also discussed, since the world is globalizing, और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं और लिबरलाइज्ड हो गए हैं. ट्रांजैक्शंस, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या मर्चेंडाइजिंग है, कंट्रीज हैव ओपनड अप देयर बॉर्डर्स. तो जब आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, सो हाउ इज इट पॉसिबल कि हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड हो और वो उसके अकॉर्डिंग काम करे, जबकि आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री और इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं. What will happen in that case? Standardization, यानी एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री के, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर द रीजन अप्लाई हों. सिंगल यूरोपियन एक्ट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच वॉज अ मेजर स्टेप बाय यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज ने एक सिंगल एक्ट लॉन्च करके बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड किया तमाम रूल्स को. एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव कि वो यूरोपियन रीजन में बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट कराना चाहते हैं. बेसल अकॉर्ड इज वन ऑफ द स्टेप व्हिच दे हैव टेकन कि बेसल अकॉर्ड के थ्रू किस तरह से स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे,
जिसमें डिफरेंट 12 नेशंस के इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के हेड्स ने पहले तो डिसाइड किया, उसके बाद उनके सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स हैं उन्होंने बेसिकली फाइनेंशियल रेगुलेशंस लॉन्च की फॉर द जनरल स्टैंडर्डाइज्ड पर्पस। बेसल अकॉर्ड 2 क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? बिकॉज वी डिस्कस्ड कि ऑपरेशनल रिस्क को अवॉइड करने के लिए या फिर वो लोन्स जिसके पीछे कोलैटरल प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा था उनको रिवाइज करने के लिए बेसल अकॉर्ड 2 इंट्रोड्यूस कराया गया, ताकि जो डिस्क्रिपेंसीज बेसल अकॉर्ड 1 में रह गई हैं वो बेसल अकॉर्ड 2 में इनकॉर्पोरेट कर दी जाएं और ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर द फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है उसमें सेम टाइप के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कराया जा सके। सिंडिकेटेड लोन्स क्या है? When we discussed कि it is offered by a syndicate of the banks, कि जब एक बैंक नहीं बल्कि बहुत सारे बैंक्स का ग्रुप फॉर्म होता है और वो आपको लोन्स ऑफर करते हैं। What will happen in that case? Obviously, जब आपके बहुत सारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं उसमें तो डिफॉल्ट का रिस्क कम है, क्योंकि जो इधर गवर्नमेंट्स लोन ले रही हैं या फिर मल्टीनेशनल्स लोन ले रही हैं, दे नो इट कि आपकी इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स के साथ है। कोई एक बैंक नहीं है कि जिससे आप डिफॉल्ट करके दूसरे बैंक से जाके लोन ले लेंगे। और गवर्नमेंट के लिए भी यही है कि गवर्नमेंट क्योंकि लोन ले रही है एक सिंडिकेट से, सो अगर किसी गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी तो ऑब्वियसली बैंक्स आपस में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइम बैंक से लोन लेना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। We also discussed the international credit market के क्या possibilities हैं international business में credit लेने के लिए। So there is a possibility whether you go for international bond market or you go for international stock market. We will discuss the international stock market later in our next lecture. While we have discussed the international bond market, that why multinational prefer to go for international bond market rather than considering their domestic market. And we have also focused कि there is a possibility कि multinational को loans जो हैं वो foreign markets में reduced rates पे offer हो रहे हैं, that's why they are trying to avoid the domestic market. Secondly, there is a possibility कि आपका exposure ज़्यादा है और there are more chances कि आपकी multinational foreign market से loans achieve कर लेगी. So for international stock markets, we will discuss it in our next lecture.